آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جانوروں کی بیماریوں کی دواؤں اور دیکھ بھال کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لانے کی خاطر نئی تکنیک کے استعمال پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر کوواڈ کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے امریکہ کے 3 دن کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ہماچل پردیش میں شدید بارش ہونے سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے پہاڑی ریاست سمیت دلی، پنجاب اور اتراکھنڈ میں 5 جولائی تک تیز بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ پورا یورپ شدید گرمی کی گرفت میں ہے۔ جنوبی اسپین میں درجہ حرارت 46 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو اب تک کا سب سے زیادہ ہے۔ پرتگال، اٹلی اور کروشیا میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، اور ٹینس کا تیسرا گرینڈ سلیم ویمبلڈن ٹورنامنٹ لندن میں شروع ہو رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ دیگر شعبوں کی طرح ٹیکنالوجی بھی مویشیوں کی طبی دیکھ بھال میں انقلابی تبدیلی لا سکتی ہے۔ آج صبح بریلی میں انڈین ویٹرنری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے 11ویں تقسیم اسناد پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال پورے ملک کے مویشیوں کے اسپتالوں کو بااختیار بنا سکتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ جینوم ایڈیٹنگ، ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجیز، مصنوعی ذہانت اور بڑے اعداد و شمار کے تجزیوں سے اس شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ टेक्नोलॉजी के प्रयोग से देश भर के पशु चिकित्साओं को सशक्त बनाया जा सकता है। जेनोम एडिटिंग, एम्ब्रॉय ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे टेक्नोलॉजी की प्रयोग से इस क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला जा सकते हैं। صدر جمہوریہ نے کہا کہ آج پوری دنیا میں ایک صحت کا نظریہ اہمیت حاصل کر رہا ہے۔ یہ نظریہ بتاتا ہے کہ انسان، گھریلو اور جنگلی جانور، پیڑ پودے اور وسیع ماحول ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ पशु कल्याण के लिए नियमित रूप से पशु आरोग्य मेलों का आयोजन होना चाहिए। इन मेलों के तहत गांव-गांव में कैंप लगातार पशुओं की चिकित्सा होने पर पशुओं के साथ साथ समाज भी स्वस्थ रहेगा। صدر جمہوریہ آج گورکھپور کے ایمس کے افتتاحی تقسیم اسناد پروگرام میں بھی شرکت کریں گی، جہاں وہ ہونہار طلباء کو میڈلز عطا کریں گی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے امریکہ کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ یہ دورہ کل سے شروع ہونے والے کوواڈ وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ مارکیو روبیو کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوواڈ گروپنگ کا مقصد ایک آزاد اور کھلے بھارت بحرالکاہل کے لیے مشترکہ ویژن کو آگے بڑھانے کی نئی تجاویز پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اجلاس پہلگام حملے کے بعد کوواڈ وزراء کی پہلی میٹنگ ہوگی۔ ڈاکٹر جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں دہشت گردی کے سبب انسانی زندگی کو لاحق نقصان کے عنوان سے ایک نمائش کا بھی افتتاح کریں گے۔ یہ نمائش دنیا بھر میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے تباہ کن اثرات کو اجاگر کرے گی، ساتھ ہی عالمی برادری کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف اقدامات کو بھی نمایاں کرے گی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اسپین، پرتگال اور برازیل کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئی ہیں۔ ان کا یہ دورہ 5 جولائی کو ختم ہوگا۔ اسپین میں اپنے قیام کے دوران محترمہ سیتارمن اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ترقی کے لیے سرمایہ فراہم کرنے سے متعلق چوتھی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ اس کانفرنس میں نئے اور ابھرتے ہوئے معاملات، نیز پائیدار ترقی کے مقاصد پر پوری طرح عمل درآمد کی فوری ضرورت اور بین الاقوامی مالی نظام کی ذیلی اصلاحات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ کیے جانے کے 50 سال پورے ہو چکے ہیں، اور اس دور کو بھارت کی جمہوری تاریخ میں سب سے تاریک دور میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو میسا کے تحت جیل میں قید کر دیا گیا تھا، ان کی عزت افزائی کی جا رہی ہے۔ ہم نے ایمرجنسی کے دوران پیش آنے والی صورتحال کے بارے میں سیاستداں ارون وششٹ سے بات کی۔ جیل کے اندر تو جو ماحول تھا وہ تو سامانیہ جو جیل کے اندر ہو سکتا ہے اور جس کی آپ کلپنا کر سکتے ہیں، پر وہ اترکت بندشیں تھیں اس ناطے کہ ہماری ملاقات پر پرتبندھ تھا، ہم سے کون ملنے آ رہا ہے اس کا LIU دیکھتی تھی۔ بہت ہی نکٹ کے لوگ وہ ملنے آ پاتے تھے۔ سماج تو جیل سے بھی زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ جو لوگ باہر تھے، رشتہ دار کو نہیں پہچان رہے تھے، گھر آنا جانا نہیں تھا۔ ہم لوگ جو جیل آ گئے تھے، ان پریواروں کی دیکھ بھال کرنے والے بھی ہمارے نجی لوگ نہیں تھے۔
संथाल लोगों ने बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आज़ादी और इंसाफ के लिए अपनी जिद्दोजहद में जो कुर्बानियां पेश की थीं, उसकी याद में आज हुल दिवस मनाया जा रहा है। इस जिद्दोजहद को संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, जो 30 जून 1855 को शुरू हुई थी। ये बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत की जाबराना पॉलिसियों और साहूकारों की जानिब से इस्तेसाल के खिलाफ एक नुमाया शोरिश थी। सिद्धू और कानू मुर्मू की ज़ेर क़यादत संथाल लोगों ने उनकी बहनों, फूलों और जानों के हमरा अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ने और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जिद्दोजहद के लिए बड़ी तादाद में कबायली नौजवानों को यकजा किया। भारत की जिद्दोजहद आज़ादी में इस बगावत का अहम रोल रहा और सबसे निचली सतह पर इसकी क़यादत और कबायलियों के हुकूक पर इसके असरात के लिए इसे याद किया जाता है। बीजेपी ने वक्फ तरमीमी एक्ट के बारे में आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव की मुतनाज़ रायज़नी की बिना पर उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। आज नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि बिहार असेंबली में अपोजिशन के लीडर न तो पार्लियामेंट का और न ही अदलिया का एहतराम करते हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं। हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिन से जारी तेज़ बारिश की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खलल पड़ गया है। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से चट्टानों के टुकड़े गिरने, इमारतों के ढह जाने और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा होने की इत्तला मिली है। इंतज़ामिया ने लोगों पर जोर दिया है कि वो एहतियात बरतें। शदीद बारिश होने की पेशगोई और चट्टानों के टुकड़े गिरने के अंदेशे के तनाजुर में आज हिमाचल प्रदेश के 4 ज़िलों में सभी तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से 129 सड़कों पर ट्रैफिक दरहम बरहम होकर रह गया है और 600 से ज़्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं। मौसमियात के महकमे ने रियासत में तेज़ बारिश का सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की है। उत्तराखंड में शदीद बारिश की वजह से 4 धाम यात्रा को जो आर्जी तौर पर रोका गया था, वो बंदिश आज हटा ली गई है। गढ़वाल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि उत यात्रा के रास्ते पर जिला मजिस्ट्रेट साहबान को हिदायत दी गई है कि वो मकामी मौसम के हालात की बुनियाद पर अपने अपने इलाकों में मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त को मुंजबित करें। जो यात्रा रूट पे आने वाले डीएम और एसएसपीज हैं, स्थानीय प्रशासन है, उनको यह अधिकार दिया गया है कि स्थानीय मौसम और परिस्थितियों को देखते हुए अपने अपने जनपदों में जो होल्डिंग पॉइंट्स हैं वहां पर वाहनों को रोक सकते हैं। मॉर्निंग में जब हमारी चर्चा रुद्रप्रयाग से उत्तरकाशी और चमोली के जिलाधिकारियों से हुई तो बताया कि वहां बारिश बंद है, तो उन्होंने कहा कि सब धीरे धीरे लोगों को भेजा जा सकता है। तो सभी परिस्थितियों को विचार करके ये निर्णय लिया गया है। पूरे यूरोप में शदीद गर्मी की वजह से दर्ज हरारत नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से सेहत और जंगल की आग से मुतालिक खतरात बढ़ गए हैं। जनूबी स्पेन सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां ईएल ग्रेनेडो में दर्ज हरारत 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो जून के महीने में अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया दर्ज हरारत है। पुर्तगाल, इटली और क्रोशिया के हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मगरबी और वस्ती यूरोप में मौसम से मुतालिक वार्निंग जारी की गई है। रोम और मिलान समेत इटली के 21 शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि अस्पतालों ने लोग लगने की मामलात में इजाफा होने की खबर दी है। यूनान में जंगल की आग के खतरात बढ़ गए हैं। विंबलडन 2025 जो टेनिस कैलेंडर के मुताबिक तीसरा ग्रैंड स्लैम है, आज से लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में शुरू होगा और ये मर्दों के सिंगल्स फाइनल के साथ 13 जुलाई को खत्म होगा। 2 बार के दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज आलमी नंबर 1, जेनिक सिनर और रिकॉर्ड 24 बार के ग्रैंड स्लैम फातेह नोवाक जोकोविच के साथ खेलते हुए अपने खिताब का दिफा करेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार और। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जानवरों की बीमारियों की दवाओं और देखभाल के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां लाने की खातिर नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने पहाड़ी रियासत समेत दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड में 5 जुलाई तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।